Good afternoon, children. Today, anyways, we are going to start a new chapter, chapter 14, Earth's Neighbors, children. Earth's neighbor. What do you understand by this? Earth, हमारा planet जहाँ हम reside करते हैं, हम रहते हैं. And neighbor means neighbors कहते हैं पड़ोसियों को. हिंदी में भी से पड़ोसी to neighbors. So in this particular chapter हम लोग Earth के neighbors के बारे में discuss करेंगे. Earth एक planet है, you all know this. तो Earth जो planet है उसके और कौन कौन से neighbors हैं उनके बारे में discussion करेंगे, okay? And what else we are going to study? We are going to study that what are the Earth's neighbors in space, okay? Next, what is the sun and the solar system, and why does the moon appear to have different shapes, and what are stars and constellations. So let's move on. Go to the terrace. Just imagine, children, you are out of your house. आप आपके घर के बाहर हो. Either you are in your lawn, balcony or terrace, or sometimes on the field also you people are field में आप लोग रहते हो. तो open space it should be. और उसके बाद जब up side आप देखिएगा ना, तो what do you find? You find the sky. Open white sky on the top. Endless you can say even. So that is known as sky. So go to the terrace, balcony or an open area in your house on a clear night. Look at the sky carefully. You will see many tiny specks of light twinkling all over the sky. Sky में आपको हर तरफ एक छोटे छोटे स्पेक्स दिखते हैं जो ट्विंकल करते हुए आपको नजर आएंगे. Do you know what are those specks known as? Those are none other than stars, children. Now some stars are quite bright and some are dim. Some specks of light do not twinkle, they are the planets. So जो स्पेक्स जो दिखते हैं ना, जो ट्विंकल करते हुए रहते हैं, those are known as stars. और जो ट्विंकल नहीं करते हैं, सिर्फ स्पेक्स दिखते हैं, सिर्फ लाइट यू कैन से इन योर ओन वर्ड्स कि जिनकी सिर्फ लाइट विजिबल होती है ना, कि जैसे इस स्पॉट में कुछ है, एक लाइट ऑन है, तो दैट इज अ planet. This is the way how we can identify कि where is the star or where is the or what is the planet. Planet क्या है, कौन वाला planet है और कौन वाला stars है. Now besides these you will also see the silver moon shining in the sky. Sky में आपको moon भी तो नज़र आता है ना. Now now go to the same place. उसी place पर आप फिर से जाओ during a clear day. Like first one I have said at night. नाइट में जब आप जाओगे ओपन स्पेस में तो आपको क्या दिखेगा स्काई में? स्टार्स दिखते हैं, मून दिखते हैं, एंड समटाइम्स यू कैन सी रेड कलर ऑफ द स्काई. वाई द कलर ऑफ द स्काई बिकम्स रेड? जब भी रेनी वेदर रहेगा या क्लाउड्स फॉर्म हुए रहेंगे स्काई में, व्हेन इट इज़ अबाउट टू रेन, तो at that particular time the color of the sky becomes red color. But in the same manner, उसी तरह से जब आप डे टाइम में घर के बाहर निकलोगे, you will find that all the stars, planets and the moon have disappeared and there is a huge disc-like object shining brightly in the sky. And what is that known as, children? It is the sun. So sun is always visible in the daytime and moon is visible in the night time. So the sun, moon, stars and planets, these all are the neighbors in the space. Now let us know more about them. So clear? स्पेस पे कौन कौन से नेबर्स होते हैं? लाइक आपके क्लास में आपके घर के आसपास भी आप लोग रहते हो ना, तो आपके अगल बगल जो रहते दे आर नोन एज नेबर्स. तो उसी तरह स्काई में भी नेबर्स होते हैं, लाइक द सन, मून, स्टार्स एंड द प्लैनेट्स. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नेबर, दैट इज द सन, चिल्ड्रन. द सन. द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. ये तो सबको पता है, पर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डू यू नो दैट? इट कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस विच आर बर्निंग कंटिन्यूसली. जो सन है ना, इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर और गैसेस यू कैन से, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के गैसेस हर वक्त ऑल द टाइम इट बर्न्स. द सन इज इन फैक्ट अ स्टार. इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. डू यू नो दिस? क्या आपको पता था ये
कि जो सन है ना वो भी एक स्टार है और इट इज़ वेरी नियरेस्ट, और यू कैन से इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. The sun is very big in size. Though the earth seems very big to us, the sun is much bigger than the earth. ऐसे तो हमें अगर पिक्चर में आप देखोगे तो या स्पेस से देखोगे तो आपको लगेगा कि अर्थ इज़ वेरी बिग इन कंपैरिजन टू सन, बट नो चिल्ड्रन, दिस इज़ नॉट द फैक्ट. सन जो है ना वो अर्थ से भी ज़्यादा बड़ा है, उसकी साइज उससे भी ज़्यादा बिग होती है. इट इज़ सो बिग दैट इट कैन होल्ड अबाउट 10 लाख अर्थ. जस्ट इमेजिन कि सन की कैपेसिटी कितनी होती है कि 10 लाख अर्थ को जब हम ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे ना, तो एक सन का साइज बनता है. बट द सन अपीयर्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस. द सन इज़ अबाउट 1500 lakhs किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. सो अर्थ से कितना दूर है वो? इट इज़ अबाउट 1500 लाख किलोमीटर. इट इज़ अवे फ्रॉम द earth. Now the sun is very hot and the temperature of its surface is about 5500 degrees centigrade. The sun is very important to us as there would be no life on the earth without the sun. आपको पता है कि अर्थ पे अगर सन नहीं आपको विजिबल होता है या सन रेज नहीं आती है तो लाइफ जो है ना, एग्जिस्टेंस जो कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. बगैर सनलाइट के, सन के एग्जिस्टेंस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. Now plants make their food with the help of sunlight and all animals and plants depend on plants for food. Like plants children, plants जो है ना वो सर्वाइव करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ सनलाइट. आप उनमें वाटर डालो, सॉइल डालो, मैन्यूअर डालो, बट आप उसे घर के अंदर रखो प्लांट करके पॉट में, और एक पॉट में आप एक वही सेम प्लांट को, उसमें भी आपने सॉइल डाला, मैन्यूअर डाला, वाटर डाला, बट कीप इट ओपन साइड में, या तो टेरेस पे ले जाकर रख दो या ओपन बालकनी में रख दो. ऐसे पर्टिकुलर एरिया में आप उसे प्लेस करना जहाँ सन रेज आती है. एंड जस्ट आफ्टर 1 week ओनली यू कैन फाइंड जो आपने रूम के अंदर जिस पॉट को रखा था ना प्लांट का, इट स्टार्ट्स बिकमिंग ड्राई, इट डजंट ग्रोज. वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, और जो प्लांट आपने टेरेस पर या बालकनी में प्लांट करके रखा था, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग अप एंड इट लुक्स वेरी मच ग्रीन एंड फ्रेश. सो वाई? रीज़न क्या है कि जो फूड फैक्ट्री होता है ना प्लांट का, तो लाइक आप खाना बनाते हो, एग्जाम्पल लाइक चाय बना रहे हैं, तो चाय में अगर आपने टी लीव्स मिक्स ही नहीं किया है तो क्या चाय कभी प्रिपेयर हो सकता है? बगैर दूध के चाय बनेगा, बगैर चीनी के चाय बन सकता है, लेकिन बगैर टी लीव्स के, बगैर चाय पत्ती के चाय बन सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. वो चाय कहलाएगा ही नहीं, बिकॉज टी लीव्स, टी पी रहे हैं तो टी में टी लीव्स कंपल्सरी होता. तो उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, तो उनकी फूड बनती है, जो प्रिपरेशन होती है, इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस से ही फूड बनती है. ओके, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. और अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ना वर्ल्ड में, तो उनके लिए एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगा. सो sunlight is very much necessary for all the living beings surviving on this earth. Now next comes the solar system. बहुत सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा आपके सोलर सिस्टम के बारे में. So we will see about it now. As the day passes, it seems that the sun has moved across the sky. In reality, the sun does not move. It appears to change its position due to the rotation of the earth. अर्थ का रोटेशन जो होता है ना, उसके वजह से हमें ऐसा फील होता है कि सन का जो पोजीशन है ना वो चेंज हो गया है. The earth also revolves around the sun in a fixed orbit. This you all know कि अर्थ जो है रिवॉल्व जो करता है, रेवोल्यूशन जो होती है अर्थ की, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में होती है. But the earth is not alone. There are 8 such bodies which move around the sun. So अर्थ इकलौता एक प्लैनेट नहीं है जो कि रोटेशन करता है. अर्थ के साथ में और भी रेस्ट 8 प्लैनेट्स होते हैं who moves around the sun, children. They are called what? Planets. The sun and its 8 planets together form the solar system.
तो ये जो प्लैनेट्स है ना, लाइक अर्थ वो एक सिंगल प्लैनेट, जुपिटर एक अलग प्लैनेट, तो सारी जो 9 प्लैनेट्स हैं जब आप उन्हें कंबाइन कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक फैमिली। लाइक मदर इज देयर, फादर, चिल्ड्रेन, ग्रैंड पेरेंट्स, पीपल आर देयर घर में, तो सबको अगर इंडिविजुअल एक एक घर में आप रख दोगे तो वो फैमिली कहलाएगी नहीं। हु स्टेज देयर, फादर स्टेज, हु स्टेज देयर, चिल्ड्रेन स्टेज, हु स्टेज देयर, ग्रैंड पेरेंट्स स्टेज इन दिस होम। बट जब सारे लोग कंबाइन करके ज्वाइन करके एक ही छत के नीचे एक ही घर में जब सर्वाइव करते हैं, रहते हैं ना, तो व्हाट डू वी कॉल, दिस इज माय फैमिली। क्लियर? इन द सेम मैनर जो सारे प्लैनेट्स को इकट्ठा कर देते हैं ना एक प्लेस पर, तो वो क्या बन जाता है, एक फैमिली बन जाता है, जिसे हम लोग सोलर सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर? नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड लर्न द नेम्स ऑफ द 8 planets. Also observe the relative size of each planet. See children, Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these all are the planets which are present in the solar system. और इन सब को जब हम join करेंगे, combine करेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, they come under which family? Solar system. Clear? Now next comes the moon, children. The moon is our nearest neighbor in space. The moon moves around the earth in the same way as the earth moves around the sun. And the moon completes one revolution in about how many days? 27 days. Like earth को कितना time लगता है one revolution में? 365 days. और sometimes 365 and 1/4 day you can say, कभी कभी वो भी लगता है, बट मून को कितना टाइम लगता है, इट टेक्स ओनली 27 days. अ बॉडी विच मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट. The moon is the natural satellite of the earth. See, this is very important. अर्थ का अपना खुद का natural satellite कौन है? That is moon. 5 other planets also have their own natural satellites. Some of them have more than one satellite. So और भी ऐसे planets हैं जिनके खुद के natural own satellites हैं, which are more than one. Now know a fact, important fact children. Man has also sent many artificial satellites in space, and because of these satellites we can talk to our friends, relatives living in different countries and watch international events live on TV. So ये भी possible है. Human beings जो हैं वो बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज लाए थे दुनिया में, तो उन्हीं में से एक था आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. चिल्ड्रन, दे हैव क्रिएटेड एंड दे हैव सेंट इट इनटू द स्पेस. और उन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का देन है कि आज हम लोग मोबाइल फ़ोन्स जो है ना, सेल फोन्स आप यूज़ कर रहे हो, तो इट्स वेरी इजी टू टॉक टू पीपल हु आर नॉट लिविंग विथ यू. इवन अब्रॉड ऑल्सो, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो रह रहे हैं उनसे भी बात करना बहुत इजी हो गया है. इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई है आपके पास, टेलीविज़न की फैसिलिटीज़ आ गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स यू आर एबल टू सी एट वंस इन एनी प्लेस. आप कहीं भी आप रोम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ भी आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है ना. डू यू नो वाई? विद द हेल्प ऑफ दीज सच आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ओनली. चिल्ड्रन, अगर पुराने ज़माने में जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, आप उनसे पूछना, वर दे यूजिंग सेल फोन्स? नो. टेलीविज़न हार्डली, ओके, 10 to 20 years पहले टेलीविज़न तो हुआ करता था, बट देयर वर ओनली सिलेक्टिव चैनल्स. दूरदर्शन, उससे ज़्यादा आपको चैनल्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी. बट नाउ अ डेज देयर आर वेराइटीज़ ऑफ चैनल्स प्रेजेंट फॉर अस, इजंट इट? सो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दोज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. नाउ द मून इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज बॉडी, but it is much smaller than the earth. Now look at the picture given here and compare their relative sizes. See the children over here, the picture. This is this is earth. Okay, this is the picture of the earth and this is the picture of the moon. Just see the size of the earth and the moon, children. Now some astronauts have already visited the moon. कुछ एस्ट्रोनॉट्स ऐसे हैं जो कि मून पर विजिट्स कर चुके हैं मून पर. एंड यू माइट हैव लिसन, आई थिंक सो 2 years before, 2 years before also you might have heard in the news channel ना, एक न्यू सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है
people went on moon. They tried their level best. Chandrayaan, about Chandrayaan 2, have you heard? It was that only children. It has been sent to moon कि जाकर मून पर आप चेक करो कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर टू स्टडी एंड इज द एग्जिस्टेंस पॉसिबल ऑन मून. इस टाइप की आपकी जो भी एक्टिविटीज़ थे ना उसके लिए उसे यूज़ किया गया था. नाउ सम astronauts have already visited the moon. The moon has rocky mountains and sand covered plains. There are huge holes called craters on its surface. It is dusty and dry and there is no air. Moon के पास you can find on moon कार्बन डाइऑक्साइड. चिल्ड्रन, जैसे ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए किस गैस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ऑक्सीजन. बट ऑन मून यू कैन फाइंड more carbon dioxide present, children. That is why existence is not possible. And even on the surface, उसकी surface पर बहुत सारे बड़े बड़े big holes हैं. See the picture over here. इस टाइप के बड़े बड़े holes पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, craters कहते हैं. So it is not possible. Though the moon shines brightly at night, it has no light of its own. The moonlight that we get is actually the sunlight that gets reflected off the surface of the moon. We cannot see the moon during the day because of the bright light of the sun. कभी कभी आपने देखा होगा ना कि अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, और हाँ अर्ली मॉर्निंग ओनली यू कैन से कि इन वन साइड यू कैन फाइंड कि यहाँ सनराइज हो रही है एंड द अदर साइज ऑफ द मून यू कैन फाइंड बहुत ही हल्का सा आपको विजिबल होता है ना, धुंधला सा, कि यानी मून तो विजिबल हो रहा. हाउ इज इट पॉसिबल? तो उस वक्त क्या होता है कि जो सनलाइट होती है ना, इट इज़ पूरी तरह से वो सन जो है ना वो राइज नहीं किया हुआ रहता है. लाइट जो सन की रहती है वो हल्की रहती है, डिम रहती है. दैट इज़ द रीज़न. इसीलिए हमें मून विजिबल नहीं होता है थ्रू आउट द डे. इट इज़ ओनली विजिबल एट द नाइट व्हेन द सन सेट्स. क्लियर? थैंक यू.